If you are preparing for Bob sales and Bob agree, the time is to prepare only from the Ready Reckoner. The much awaited Ready Reckoner is now out. So focus only what matters for your exam point of view. When you prepare for such kind of competitive exam, you don't read everything on earth. जब आप competitive exam की तैयारी करते हैं लास्ट मिनट में सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है. नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास भरपूर समय है. Time is to prepare only the MCQs that will come in the exam. 8 months back, when the first BOP cells and BOP Agri exam were held, questions came only from this Ready Reckoner. More than 95% questions to be precise. Go and check out the written review held by Knowledgeist. So your copy is now available in your application, website, and the comment section of this video. For existing students, same is added to your course as well. So see you inside, catch you inside, and let's dive into some of the important MCQs. These are the questions from Ready Reckoner, top questions. What is the maximum loan amount provided under the first tranche of PM Vishwakarma scheme? Yes, PM Vishwakarma scheme. पहले बहुत क्वेश्चन आता था. It is 1 lakh. Okay. Collateral free enterprise development loans up to 3 lakh in 2 tranches. First tranche 1 lakh, second tranche 2 lakh. Tenor 18 months and 30 months respectively at a concessional rate of interest fixed at 5%. विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबवेंशन टू द एक्सटेंड ऑफ 8%. एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा. ठीक है. लास्ट टाइम पीएमईजीपी से क्वेश्चन आया था, इस बार पीएम विश्वकर्मा भी आ सकता है. सो व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए केस टू बी फाइल्ड अंडर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी? आई एम गोइंग वेरी फास्ट. मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ आज, मुझे पता है. आप लोगों को मेरे साथ कोप अप करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा. स्पीड सही है. मैं बातें आज कम कर रहा हूँ, गला खराब है, बात कम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इज इट ओके गाइस? यस, इट इज 20 lakh. Yes, you all know it. I know you all know it. ठीक है. What is the current minimum default amount required to initiate corporate insolvency resolution process under IBC? The minimum default requirement is 1 crore. Minimum default requirement is 1 crore. ठीक है. ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है? यस मुग्धा. यस, आंसर है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम. इसमें होता क्या है? कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट ट्रेड्स का मिलता है? लगे हाथ आपका कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त हो जाना चाहिए. कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा ट्रेड्स का बेनिफिट मिलता है? लेट्स सी हु कैन आंसर इट. यस, एमएसएमई को मिलता है. आरसेटी का फुल फॉर्म बताइए. आरसेटी स्टैंड्स फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. where the investment in plant and machinery or equipment doesn't exceed 2.5 crore rupees and turnover doesn't exceed 10 crore rupees, the business is classified as. ठीक है. Yes, it is a micro enterprise. It's a micro enterprise. Very good guys. What is moratorium in banking? बहुत बार बैंक न्यूज में आता है moratorium in banking. Can you tell me? Yes, a period during which a borrower is allowed to delay repayment of a loan. Right? Delay repayment of a loan. As per the IRAC norms, a regular or ad hoc credit limits that has not been reviewed or renewed within how many days will be treated as NPA? Yes, it is 180 days. It is 180 days. Negative lien means, अगर नेगेटिव लियन क्या होता है? आप लीन मार करते हैं ना, तो नेगेटिव लीन में मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव लीन? दिस इज ए डिक्लेरेशन यू गिव so that you don't mortgage same property with any other financier. आप एक डिक्लेरेशन लेते हो या फिर कस्टमर देता है, मतलब कस्टमर का एक तरह से का डिक्लेरेशन होता है कि वो किसी दूसरे जगह पे जाके उसको फिर से मॉर्गेज नहीं करवाएगा. ठीक है. बीजी इशूड आर क्लासिफाइड अंडर व्हाट काइंड ऑफ हेड इन द बैलेंस शीट? यस, इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी. ऑथर, very good. Nice to see all of you participating. As per RBI guidelines, credit rating by external rating agencies is not compulsory if the maximum aggregate exposure to a single counterparty doesn't exceed what amount? मतलब अगर रिटेल लोन है, रिटेल लोन का लिमिट क्या है? अमाउंट, कितने अमाउंट तक हम उसको रिटेल लोन मानेंगे? कितने अमाउंट तक का हम रिटेल लोन मांगेंगे? नहीं गोविंद दास, 5 करोड़ नहीं है, पुराना अपडेट है, 7.5 करोड़ है. 7.5 करोड़, इसका भी आंसर 7.5 करोड़ है. एक इंडिविजुअल कितना लोन ले सकता है? रवि कुमार से सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. कोई बात नहीं है, तबीयत तो सुधर ठीक हो जाएगा. आप रिजल्ट लेकर आइए.
आप रिजल्ट लेकर आइए। आज तबीयत कल भी मैं ले नहीं पाया, बहुत ज़्यादा खराब था। कोई इशू नहीं है, दैट इज दैट इज रिपेयरेबल, बट आपका सिलेक्शन होना चाहिए आप लोगों का। एनीवे एक इंडिविजुअल कितना लोन मैक्सिमम बैंकिंग सिस्टम से ले सकता है? इंडिविजुअल ₹5 विशाल, ये साथ इंडिविजुअल मैक्सिमम 100 करोड़ का लोन ले सकता है। मतलब मान लीजिए मैं 50,000 करोड़ का मालिक हूँ, ठीक है, मैं कोई घर लेना चाहता हूँ तो 100 करोड़ का लूंगा ना भाई। तो इंडिविजुअल के केसेस में एक इंडिविजुअल अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो मैक्सिमम 100 करोड़, बट दैट इज ए होलसेल लोन, दैट इज नॉट ए रिटेल लोन। रिटेल लोन इज एनीथिंग दैट इज 7.5। हम रिटेल में बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ले रहा है कि कॉर्पोरेट ले रहा है, ठीक है। Banks will have to furnish credit information to CRILC on all their borrowers having aggregate fund-based and non-fund-based exposure above. Anuj Mishra says, sir, I have just gone through your lectures for capital market. Very well explained. Thank you. चलिए, क्रिलिक को इन्फॉर्मेशन 5 करोड़ एंड एबव, 5 करोड़ एंड एबव, थैंक यू। The quarterly CRILC main report is required to be submitted within how many days close to the relevant quarter? किसी क्वार्टर के एंड के 21 डेज के भीतर क्रिलिक मेन रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। मॉर्गेज इज व्हाट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी? मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट और नॉन ऑफ द अबव इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मॉर्गेज करता क्या है? मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तब ओनरशिप, राइट। आपका मालिकाना, राइट, क्या बोलते हैं, वही है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर पहले आ गया है। फाइनेंसिंग बोथ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ए कंपोजिट लोन। एमएसएमई को 1 करोड़ का मालिकाना हक, बिल्कुल मालिकाना हक, इंटरेस्ट, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब किसी वैल्यूएबल जो बहुमूल्य सामान है उसके ऊपर आपका हक होना, ठीक है। यस, बी कंपोजिट लोन। एमएसएमई के केस में 1 करोड़ का कंपोजिट लोन एमएसएमई को मिलता है। व्हाट इज रेड क्लॉज इन द लेटर ऑफ क्रेडिट? रेड क्लॉज मतलब क्या है? रेड क्लॉज मतलब क्या है? चलिए, रिसीव एन एडवांस बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स, से गुड के शिपमेंट से पहले जो लोन आपको मिल जाता है उसको रेड क्लॉज एलसी कहते हैं, रेड क्लॉज एलसी, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन क्लॉज एलसी? मतलब रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या होता है, जब आप एलसी किसी इंपोर्टर के नाम पे इशू करते हैं, ठीक है, सॉरी किसी एक्सपोर्टर के नाम करते हैं, आप इंपोर्टर हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका से, उसके नाम पे आप ग्रीन क्लॉज या रेड क्लॉज एलसी इशू करते हो। एलसी का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट ए गारंटी ऑफ फंड। अगर आप अपने कमिटमेंट, अपने डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही कर दिए आपको वो पैसा मिल जाएगा। मतलब अगर 10 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट आपके नाम पे है, शिपमेंट करते ही आपको 10 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, या फिर शिपमेंट के अराइवल पे। तो आपके पास ऑलरेडी मॉर्गेज है, ऑलरेडी आप सॉरी आपके पास ऑलरेडी कोलेटरल है, तो उसके अगेंस्ट में आपके शिपमेंट में खर्चा हो रहा है, प्री शिपमेंट क्रेडिट जो लेते हैं उसको आप रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। जो जिस एलसी में प्री शिपमेंट क्रेडिट आपको मिलता है उसको आप रेड क्लॉज एलसी कहते हो। ग्रीन क्लॉज एलसी में प्री शिपमेंट क्रेडिट के साथ साथ आपको स्टोरेज फैसिलिटी का जो एडिशनल कॉस्ट है उसके भी पैसे पहले मिल जाते हैं, उसको आप ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हो, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज ओमनिबस लेटर ऑफ क्रेडिट? ओमनिबस लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ओमनिबस लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ओमनिबस लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब इट कवर्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर एंड ए सेलर अंडर ए सिंगल क्रेडिट लाइन। एक ही क्रेडिट लाइन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मतलब आपको पता है कि अपुल से आप उठाते हो हर साल, ठीक है, तो बार बार उसके नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन इन एलसी। अच्छा, व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म? एलएलपी का की फीचर क्या है? एलएलपी का की फीचर क्या है? एलएलपी इट्स ए हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, बोथ प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बीच वाला मैटर है, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज किस तरह से डिफर करता है इक्विटेबल मॉर्गेज से?
सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज का क्या डिफरेंस है? ठीक है, द सबमिशन ऑफ द मॉर्गेज डीड इन ए नोटिफाइड ब्रांच। ठीक है, तो मॉर्गेज टाइप आपको तो पता होगा, चार्ज वाला एक बार अच्छे से समय निकाल के देख देख लीजिए। प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग क्यों जरूरी है? बैंक में प्रोविजनिंग क्यों जरूरी है? रामकरण राजपूत, मैं बॉम्ब वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बॉम्ब में हैं तो आपको रेडी रेकनर का एक्सेस मिल गया होगा, बीओबी में दिया गया है, नहीं तो टीम को एक बार मैसेज कर दीजिएगा समय मिले तो। ठीक है, आप बताइए। Yes, answer is on your screens. Answer is on your screens to ensure that bank set aside funds to cover potential loan losses. लोन का लॉस इतना भी बड़ा हो सकता है कि बैंक बंद हो जाए, तो उस पोटेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए ये होता है। और एक आ रहा है, इस बार आरबीआई सर्कुलर में बात हुआ था, ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग। ठीक है, आईबीसी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? आईबीसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? बॉम्ब में बॉम्ब में 2000 के आसपास लोग होंगे, क्योंकि कुछ लोग कॉम्बो में है, ईयरली पास में है, कुछ एलुमनाइज हैं जो सिर्फ रेडी रेकनर का इंतजार कर रहे थे पिछले बार बाकी एग्जाम्स में थे। तो 2000 to 2500 of knowledge students are going to jump into bomb exam. Yes, consolidate and amend laws related to recognizing and insolvent these institute. आईबीसी एक कोड है, एक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है? व्हाट आर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स? ईडब्ल्यूएस। व्हाट आर ईडब्ल्यूएस? व्हाट आर ईडब्ल्यूएस? बिल्कुल विद्या, यहीं पे ही कंपटीशन है। मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ सबको। बस 177 कमेंट लिया है, तो 80%, 45% people have completed part 1, 20% only completed part 1 and 2, so you people have to jump in. 57 means 32% people have not yet started. I think they are not from BOM batch। लाइव बैच जो देख रहे हैं वो सब थोड़ी BOM के होंगे। कोई बात नहीं है। बाकी जिन लोगों ने कर लिया है, 2 को जल्दी खत्म करके 3 पे जंप करिए, कुछ चीजें आपको रिवाइज मतलब रिवीजन भी हो जाएगा रेडी रेकनर 2 3 में। ठीक है, मजा मजा आ रहा है कि नहीं रेडी रेकनर के एमसीक्यू करते हुए? मजा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? जिस चीज पे इंटरेस्ट ना आए वो चीज काम नहीं आता है। आर यू ऑल एंजॉइंग द रेडी रेकनर एमसीक्यूज और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? बोरोवर्स फाइनेंशियल है दैट में लीड टू डिफॉल्ट। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल का कुछ हमने दिया है। विच सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल रजिस्ट्री? सरफेसी एक्ट में एक सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात होता है। कोई बताएगा मुझे कौन सा सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात होता है सरफेसी एक्ट में, और कौन सा सेक्शन है? सरफेसी के एक्ट के दौरान हम एक सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। क्या है वो? क्या है वो वाला? सरसाई, बिल्कुल पीयूष। यस दीपक पाटीदार, बिल्कुल। सी सेक्शन 20 डिस्कस अबाउट सरसाई, डिस्कसेस अबाउट सरसाई। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट क्यों है? टू मैनेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके कंट्रोल के लिए, पूरा पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हु अपॉइंट्स द सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सरफेसी एक्ट? जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। मैं फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ कोप अप करिए। Which section of the SARFAESI Act deals with the modification of security interest? Security interest can be modified as per section 24। ओके, क्योंकि कभी आपने लोन लिया होगा, आपने मॉर्गेज हटा दिया है, फिर किसी दूसरे चीज को मॉर्गेज रखा है आपने, बहुत सारे चीजें चेंज होता रहता है लोन में, बड़े लोन्स में, तो वो सब सेक्शन 24 में हो सकता है। Within how many days must the satisfaction of security interest be intimated to the central registrar? Satisfaction मतलब हो गया कंप्लीट, लिया था, लोन लिया था, 30 डेज के अंदर आप सेटिस्फाई हो गए, आपका काम खत्म हो गया, लोन क्लोज हो गया, तो दैट इज 30 डेज।
Under an educational loan, up to what percentage of tuition fee can be sanctioned for hostel expenses, caution deposit and building fund? एजुकेशन लोन के लिए एजुकेशन लोन का मॉडल फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करता है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA। तो एडिशनल 10% कॉस्ट आप लोन में ऐड कर सकते हो।